Hello everyone. In this video, we will continue our chapter number 3 of class 8th mathematics ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਰ ਕੰਪਲੀਟ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਬੇਸਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3.3 ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਵਟ ਵਰ ਦੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ फर्स्ट आप पढ़िया सी एलीमेंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज़ योर पैरेलल साइड्स ए साइड दोनों जड़ियाँ होंदियां पैरेलल होंदियां एडजेसेंट साइड्स आर ए डी ए बी एडजेसेंट है बी सी डी आपस में एडजेसेंट है मतलब एक लाइन जिथे खत्म होंदी है नाल ही दूसरी लाइन स्टार्ट होंदी दैट इज़ दी एडजेसेंट साइड्स इतना ही एडजेसेंट एंगल्स है दैट इज़ ए बी दे एडजेसेंट है बी सी दे एडजेसेंट सी डी दे एडजेसेंट तो इदा ही अपने को एडजेसेंट ऑपोजिट एंगल्स है दैट इज़ ए सी द अपोजिट है बी डी द अपोजिट इन दी पैरेललोग्राम ओके नेक्स्ट वी हैव द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यही पढ़ी सी कि दो अगर पैरेललोग्राम अपन गिवन है तो दो जड़ियाँ होंदियां अपोजिट साइड्स होंदियां दैट इज़ ए बी एंड सी डी दे आर अपोजिट या ए डी एंड बी सी दे आर अपोजिट ओके नेक्स्ट वी हैव ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮੇਜਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਐਂਡ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਇਹ 80 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 80 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਬੀ ਐਂਡ ਡੀ ਅਗਰ ਇਹ 80 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਵੀ 80 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਐਂਗਲ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੈਂ 80 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਪੈਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ 90 ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 120 130 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ योर प्रॉपर्टी एंगल ਦੀ प्रॉपर्टी पर नेक्स्ट सी that is the adjacent angles in a parallelogram are supplementary most important property याद करने वाली property की adjacent angles ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ A is adjacent to B B is adjacent to C and C is adjacent to D and D is adjacent to A ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਤਲਬ A and D ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ A angle A and angle D ਦਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ that is will be equal to 180 supplementary ਹੁੰਦਾ 180 complementary ਹੁੰਦਾ 90 okay ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਲਗਾ ਦਈਏ ਡਾਇਗਨਲਸ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈਏ C ਤੱਕ B ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈਏ D ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ The diagonals of a parallelogram bisect each other at a point of their intersecting of course ठीक है एक point ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ diagonals ਲਗਾਈਏ A ਤੋਂ C ਤੇ D ਤੋਂ B ਉਹ ਇੱਕ point ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਵਾਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀ ਸੌਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ A O B ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਹ ਵਾਲਾ ਓਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ COD ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਆ 4 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 4 ਐਂਗਲ 3 ਐਂਡ 4 ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਐਂਗਲ A ਐਂਡ C ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ A ਐਂਡ C ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਐਂਗਲ D ਐਂਡ B ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਗਲ AB ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ CD ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੈ ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ 2 ਐਂਗਲ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ 4 ਤੇ ਸਾਈਡ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ CD ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AO ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ OC ਦੇ AO ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ CO ਦੇ BO ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ OD ਦੇ BO ਜਾਂ DO ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ
हुण आपां चलदे हैं अगे एग्जाम्पल ते एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 की कहती पई है इन दी फिगर 3.31 HELP इज़ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम गिवन है HELP गिवन दैट OE आपां नूं गिवन की है OE जिहड़ा आ वाली साइड है OE ठीक है इत्थे मार्क कर दिंदा मैं ए वाली साइड आपां नूं गिवन है 4 HL इज़ 4 मोर दैन दी PE HL किहड़ा है अपने तो आ वाला HL ये 4 सॉरी 5 मोर है 5 ऐड कर दिओ यूनिट्स किहदे विच PE दे टोटल PE दे। हुण आपां नूं पहली प्रॉपर्टी पता आ गिव मी अ सेकेंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ OE ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ OE that is we have given with 4 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ PO ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ PO ਉਹ ਵੀ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ OE equals to PO ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ PE ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ PE will be equals to 4 plus 4 that will be 8 कि इतने सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखते पे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन भी कुछ नहीं मैंशन किया जस्ट 4 एंड 8 इदा ही सीधा दिता इस करके सेंटीमीटर नहीं लिखते पे। अगे उन्होंने क्वेश्चन क्या सी HL इज़ मोर दैन HL इज़ 5 मोर दैन PE HL जिहड़ा होगा जिन्ना भी PE होगा वो 5 ऐड कर दिओ उदा उन्ना ज़्यादा होगा दैट इज़ 13 ठीक है। हुण फाइंड आउट करनू की क्या फाइंड OH फाइंड आउट करनू कहंदे पे OH की अपने तो OH that is this one OH आ वाली साइड हाफ नू फाइंड आउट करन पूरा तो HL ते फाइंड आउट कर लिया 13 आ गया अपने तो OH आप फाइंड आउट कर दें इत्थों that is 13 divided by 2 that will be equals to 6.5 इन्ना ही सी आंसर इन्ना ही दिता होया उन्होंने ठीक है। होप सो तुहानूं समझ आ चुका होगा बड़ा ईजी जा कॉन्सैप्ट है बस आपां नूं बेसिक्स पता होने चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ बेसिक पता होने चाहिए तो आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने मुताबिक ठीक है। कई बार की होना मैं अलग मैथड लगा सकता तुहाडे माइंड दे विच अलग मैथड हुंदा होना कि इनू आपां होर मैथड ना कर सकते उत्थे तुसीं अपना मैथड भी लगा सकते हो। सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3.3 द फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपां गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD ठीक है। आपां एक पैरेललोग्राम गिवन है तुहाडे जिद्दां सामने दिता होया एक पैरेललोग्राम आपां ओके गिवन दी पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद दी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज ठीक है। इहदे विच किहड़ी प्रॉपर्टी यूज करके आ थले वाली ब्लैंक्स नूं आपां कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 3 2 मार्क्स दे विच आ सकदा ईजीली आ सकदा है। हुण देखो फर्स्ट इज दे आर टॉकिंग अबाउट दी AD इज इक्वल्स टू AD की है दिस वन A एंड D एक किहदे इक्वल होगा आपां हुणे पढ़ के आए सी सब तो पहली प्रॉपर्टी की पढ़ी सी कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल दैट मीन्स CB AD किहदे इक्वल होगा फर्स्ट द आंसर है अपने कोल AD सॉरी तो मैं इज इक्वल्स टू बात था AD इज इक्वल्स टू CB अपोजिट sides of parallelogram are equal पूरा लिखना पैना था नोट थे ओके। देन वे सेकंड इज योर DCB एंगल DCB दे आर टॉकिंग अबाउट द एंगल C A ये किहदे इक्वल होगा ऑफ कोर्स एंगल DAB क्योंकि ए ही ये इक्वल होगा DCB दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल C बारे गल करते पे ये किहदे इक्वल होगा ऑफ कोर्स अपोजिट साइड वाले दे एंगल A दे। सेकेंड वाला आया तुहाडे कोल एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल DAB ओके। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सेम ही लिख देना सारा ओके। नेक्स्ट वी हैव OC दैट इज दिस वन O तो लैके C तक किहदे इक्वल होगा ऑफ कोर्स OA दे हुणे ते आपां पढ़ के आए सी डायगोनल्स वाला OC मस्ट बी इक्वल्स टू OA प्रॉपर्टी सी अपने कोल डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ठीक है। पूरा लिख दिओ इत्थे जगह नहीं है इन्नी वड्डी सो तुहानूं खुद दे लिख लेना
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, that is D. okay, angle DAB, angle DAB, एंगल ए बारे गल करते पे, एंगल ए बारे, ठीक है, एंगल ए DAB प्लस एंगल CDA, एंगल ए तो एंगल D दोनों प्लस करांगे। हुणे प्रॉपर्टी पढ़ी सी, सम ऑफ दी एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एंगल वो, DAB प्लस CDA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतने भी रीजन मैंशन कर देना, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, adjacent angles, sorry, sum of the adjacent angles of parallelogram is complementary। तो मेरे तो जगह घट है, इस करके मैं थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड करके लेता, तुसीं इनू साफ साफ करके लिख लेना विद रीजनस, ठीक है, कंप्लीट आउट हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई। नैक्सट क्वेश्चन के उपर चलते हैं। Next question we are given, we complete consider the following parallelogram, find the values of unknown x y and z, ठीक है, इन्हां दी वैल्यूज़ आपां फाइंड आउट करनी है जिहड़ी फिगर्स आपां नूं गिवन है। चलो पहली फिगर नूं आपां ध्यान नाल एनालिसिस करदे हां। पहली फिगर दे विच आपां नूं गिवन की है, आपां नूं गिवन है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ AX Y Z ਨੂੰ फाइंड आउट करो। X Y Z ਈਜ਼ੀਲੀ फाइंड आउट कर सकते। पहली गल तो मैनूं सिद्धे देख के पता लगता पिया कि इफ एंगल B इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, X कितना आ जाना, ये भी 100 आ जाना अपने तो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंगल A ते एंगल दैट इज एंगल Z प्लस, सीधे लिख लेने आप Z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी। Z प्लस वाई तो आप 100 फाइंड आउट कर लिया, ये तो 180 सी। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉम्प्लीमेंट्री, इत्थे तुसीं कंप्लीट कर देना, इत्थे जगह नहीं अगेन, आर कॉम्प्लीमेंट्री तुसीं कंप्लीट लिखना इत्थे जिद्दां पिछली लिखिया होया सी। Z की वैल्यू कितनी आई नहीं, 180 माइनस 100, Z आ गया अपने तो 80, ठीक है, Z 80 आ गया तो X भी अपने तो कितना आऊगा, 80 ही आऊगा, क्योंकि अपोजिट फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड एंगल्स, इतने एंगल्स होना सी, मैं गलत लिख देता, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। X भी फाइंड आउट करता, Y भी करता तो Z भी कर देता। होप सो तुहानूं समझ आ चुका होगा, काफ़ी ईजी सी, कोई भी डिफिकल्ट नहीं सी क्वेश्चन है। चलो सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं आप। सैकेंड क्वेश्चन के विच भी आपां नूं एक पैरेललोग्राम दिता, पर थोड़ा जिहा एक्सटेंड करके Z भी दिता होया, दैट इज एडजेसेंट टू Y। पहला एंगल सीधे ही पता लगता पे 50 डिग्री प्लस एंगल X दैट इज X 180 के इक्वल होणगे। अगेन प्रॉपर्टी उही होनी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो पूरा लिखना पैना तुहानूं, सप्लीमेंट्री जिन्ना भी सी, ठीक है, सप्लीमेंट्री। ये विच दोनों ने प्लस किया आपां, X की वैल्यू आनी अपने तो 180 माइनस 50 डिग्री, 130 डिग्री आ गई अपने को, ठीक है। तो X अगर अपने तो 130 डिग्री है तो Y भी अपने तो कितना आ जाऊगा 130, क्योंकि अपोजिट एंगल, सॉरी साइड नहीं, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल Z भी अपने तो 130 ही आ जाना, क्यों, एडजेसेंट अल्टरनेट एंगल, सॉरी मैं गलत बोलता पाया सी उसदा ही, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, एंगल ए वाला तो ए वाला। होप सो तुहानूं समझ आउंदा पिया जिद्दां भी मैं क्वेश्चनस नूं करवाउंदा पिया, ठीक है। काफ़ी ईजी है, मतलब डिफिकल्ट नहीं कह सकते आपां इन्हां नूं, जस्ट तुहानूं प्रॉपर्टीज़ नूं रिमेंबर करना पैना कि किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ आपां पिछे पढ़ के आ चुके हैं, उही प्रॉपर्टीज़ नूं यूज़ करके आपां क्वेश्चनस नूं सॉर्ट आउट करते पे। एक गल दा ध्यान रखियो, किते भी आपां प्रॉपर्टी जिहड़ी यूज़ करते पे उत्थे हमेशा ब्रैकेट दे विच सामने उहदे मैंशन करना,
ठीक है, बिकॉज इत्थे बिकॉज पा दिओ 3 डॉट्स ना, ठीक है। ओके, नैक्सट वी हैव सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਐਕਸ 90 ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਐਕਸ 90 ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੋਂਬਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਂਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਓ ਏ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓ ਏ ਬੀ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਓ ਏ ਬੀ, ठीक है। सम ऑफ दी एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब टू सारे ही एंगल्स ऑफ सम कितना होगा दैट इज़ 180 एंगल सीधे तिने ट्रायंगल्स नूं अगर तिने एंगल्स नूं अगर आपां प्लस कर दिए ट्रायंगल्स दे दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो इत्थे आपां मैंशन कर दिंदे एक्स इज इक्वल्स टू 90 बिकॉज वो सीधा ही पता लगता पाया उतों डायग्राम तो 90 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 180, वाई विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 93, ये दोनों प्लस करता 93 आ गया, उधर जाके माइनस किया, इत्थे अपने तो बन जाना आ दैट विल बी इक्वल्स टू 87, वाई अपने तो 87 आ गया, तो जैड भी अपने तो 87 आऊगा। ध्यान नाल देखो अल्टरनेट एंगल्स दिस वन ए इधर है, ये लैफ्ट हैंड साइड दे राइट हैंड साइड दे लैफ्ट हैंड साइड दे ये अल्टरनेट एंगल बन गया। ओके, होप सो तुहानूं ये इन्ने क्वेश्चन समझ आ चुके थर्ड पार्ट तक, तो इन्हां नूं तुसीं ध्यान नाल खुद सॉल्व कर लेना हुण, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम विद द क्वेश्चन नंबर सैकेंड क्वेश्चन जिद्दां कीता सी उदां ही फोर्थ क्वेश्चन हो जाना चाहिए आ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं करवा दिना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आप की दिता होया। फिफ्थ क्वेश्चन के अपन डायग्राम अगर आप ध्यान नाल देखीए ये अपने तो पैरेललोग्राम दिता आ, पैरेललोग्राम दे विच आपां नूं सीधा ही पहला आपां की करदे दो ट्रायंगल्स बनते भाई अपने तो, ठीक है। दो ट्रायंगल्स दे विच आपां पहला ट्रायंगल आ ले लैने ओ आपां ए बी सी डी ले देने सारे नूं नाम ए बी सी एंड डी। आपां ट्रायंगल आ वाला कंसीडर करते हैं पहला, ठीक है। इनू पहला कंसीडर कर लिया अगर 180 अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पहला एंगल वाई पता होना चाहिए। एंगल वाई कि इक्वल होगा एंगल दैट इज़ 112, एंगल सी वाई तो अपना जो सीधे ही अपने तो 112 आ जाना। प्रॉपर्टी किहड़ी लगी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो आप लगाई इत्थे 112 प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये मैं वाला ट्रायंगल कंसीडर करता पाया सी ए वाला, ठीक है। तो इन्होंने प्लस करके आप एक्स की वैल्यू कर लेने, ये अपने को आ जाना है -40 माइनस 112, पहला प्लस कर लेने तो उन्होंने 180 माइनस 152 x will be equals to that will be equals to 28, ठीक है। x 28 आ गया। हुण ध्यान नाल अगर आप देखिए तो जिहड़ा अपने कोल x है वो किहदे एडजेसेंट है ऑल्टरनेट है दैट इज z दे, सीधा ही पता लगता पाया z will also be equals to 28। क्वेश्चनस नूं बस ध्यान नाल समझण दी देर है, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हुंदा पिया है, ठीक है। होप सो तुहानूं इन्ना समझ आ चुका होगा। बाकी आपां नैक्सट टाइम इदां ही कंटिन्यू करांगे, ठीक है। इहदे रिलेटेड क्वेश्चनस मैं ऐड ऑन कर दूंगा, यही भी क्वेश्चन ऐड करूँगा तो थोड़े जे होर इहदे नाल दे क्वेश्चनस नूं ऐड करूँगा सो दैट यू कैन परफॉर्म इट। ओके, थैंक यू।